one, and that is about Hazrat Ibrahim alayhi salam. Okay, this one. Can you see the screen? Uh, yes, Surah An'am. Hmm. This is also one of the interesting. बड़ा interesting है ये भी. Hmm. ये पूरा have this one. हाँ. अच्छा, before starting this, I would like to give you a little background. इसका जो तफसीली जो इंट्रोडक्शन आएगा, that will come. एक मिनट, let me just turn off my, ताकि आपको क्लियर मेरी आवाज आए. तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना, व्हेन वी विल डू इंशाल्लाह द टॉपिक हैज, आई विल लेट यू नो द स्टोरी ऑफ द इवेंट्स इन मच डिटेल. However, here I would like to tell you something, that this passage do have two interpretations or tafsir. We do have a topic in Islam that's called tafsir of Quran Majid. तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे तफसीर के रिसोर्सेस क्या होते हैं. By majority, the mufassirin, you know mufassirin who can do tafsir of Quran Majid, ठीक है ना. Yes. What this tafsir was taken by the Cambridge examiner, और जो हमें सिलेबस के अंदर मिला हुआ है, that is based upon Cambridge examiners, और वो उसने तफसीर जो ली है वो ली है जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ने कही है, जो आपको अभी मैं बताऊंगा. However, there's another tafsir which is taken by other scholars to Mufassirin, and that is that this incident is after Hazrat Ibrahim Salam getting prophethood. यानी कि जो कैम्ब्रिज ने जो तफसीर ली है वो ये लिए कि when he was in search of true God Allah. ठीक है, और Yes. हमें वही लिखना पड़ेगा. लेकिन एज फार द नॉलेज कंसर्न हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली दूसरी तफसीर भी है. और दूसरी तफसीर क्या है, जैसे मैं बताई, वो ये कि when he got the prophethood and he was asked by Allah to start preaching Islam and Tawheed, then he started doing this. I would say, أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala, he is reminding an incident, an event, or you can say the phase of Hazrat Ibrahim salam when he was in search of true God Allah, and start thinking and pondering about this heavens and earth. And what was the purpose for that? That he would like to make him to be more confident and more firm in his tawheed. So in this way, we can take this passage, which is taken from Surah Al-An'am, and the main theme of this passage is about Allah's relationship with his messenger Ibrahim Islam. In this passage, Allah would like to let us know that when Ibrahim Islam was in search of Allah, he started thinking and pondering about heavens and the creation which is created by Allah subhanahu wa ta'ala. And he, in a first phrase, he assumed that this can be a Lord. इसकी वजह क्या है, जैसे फला एक इन्होंने लिखा है कि फलम मजन लैल रान कौकबन. लैल कहते हैं अरबिक में नाइट को, कौकबन स्टार्स को कहते हैं. So once upon a time when there was a night and the sky was full of stars, it was looking very fascinating, very beautiful. So Ibrahim Salam, he thought that this can be my Lord. उन्होंने क्या कहा, क़ाला हाज़ा रब्बी. हाज़ा अरबिक में कहते हैं हाज़ा रब्बी, it is my Lord, he is my Lord. फलम्मा फ़लक़ क़लबुल. When the next morning comes, when sunrise, the stars light vanished. So the Ibrahim Salam, I do not like, I do not know those who can manage, who cannot exist all the time. ठीक है. Yes. अच्छा, दूसरा ये है, अब ये तो आप समझ लें कि इसे आपको मैं वन गो में बता देता हूँ कि फलम मरायल कमर, कमर कहते हैं फुल मून को. ठीक है, तो फलम मरायल कमर बाजरन क़ाल हाज़ा रब्बी. Another time when there's a full moon, and full moon is also very fascinating. आपको पता है ना कि जो Yes. मून है उसकी एक बाकायदा दुआ है. तो लोग तो बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं. दे आर वेरी मच फैसिनेटिंग कि भाई इट इज़ वेरी सो ब्यूटीफुल.
But Islam says when we see the full moon, we should recite A'udhu billahi min sharri hadha. अजीब बात है कि 14 years back, Prophet he taught Muslim when we see the full moon, we should say this dua, A'udhu billahi min sharri hadha. Oh Allah, I seek refuge from this. ठीक है, I seek refuge of all harm from this. यानी कि रसूलुल्लाह ने कहा कि जब फुल मून है इसका एक इम्पैक्ट होता है। तो उस वक्त ये बात बड़ी अजीब गरीब लग रही थी कि यार इतना खूबसूरत चांद है, सो ब्यूटीफुल, और बहुत सारे रोमांटिक अशार भी कहे जाते हैं, लेकिन क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही? तो इट हैज़ बीन प्रूवन साइंटिफिकली। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईयर्स डिकेड बैक्स इन अमेरिका देयर वाज सम रिसर्चर, दे डू रिसर्च and then they calculated that when there's the full moon, the crime rate increase. They observe when there's a full moon, जब full moon होता है तो crime rate accidents बढ़ जाता है, और उसकी वजह है कि full moon के अंदर there's high tides in ocean. So they assume, they calculated कि when there's a full moon, it also attract the human blood towards its upper side. And when at its high tide in ocean, similarly there's high tide, high pressure in human body, the blood starts flowing so frequently towards their head, and it starts irritating people. And due to this irritation, they do make accident or they do make crime. तो अजीब बात है कि अब साइंस बात को प्रूफ कर दिया है, जो नबी करीम ने 14 साल पहले हमें बताया था कि जब फुल मून देखो तो ये दो पढ़ना चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा, या अल्लाह ताला मैं इसके शर से आपकी पनाह मांगता हूँ। बहरहाल, when there was full moon, so at that time he was also so much inspired with his beauty, and he said he is my Lord, ये मेरा रब है, हाज़ा रब्बी, फलम फल खलम यहदी रब्बी. When the next morning, when sun comes, the full moon has gone, as there was no shining full moon there. So when Hazrat Ibrahim, he saw that moon is vanished, so he said, if Allah did not do hidayah, my Lord, अल्लाह का वर्ड नहीं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अल्लाह का नहीं, रब का वर्ड है, रब्बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोटिस कीजिएगा, रब्बी लाइक। in that time Ibrahim said, if my Lord, whosoever at that time, if he did not guide me, I would be among those who are totally in vain. मतलब दौलिन कहते हैं जो लोग गुमराह होते हैं, who have gone astray, who have no clue, no idea, misguided. मगजूब कहते हैं जिन पर अल्लाह ने गजब नाज़िल किया, जैसे Christians and Jewish people. Why? Because they had the book, even then they disobeyed Allah's command, they tempered the book of Allah, so Allah cursed them. और दौलिन को कहते हैं who are misguided people like Quraysh of Makkah. They had no idea, and they were, due to this ignorance, they used to worship idols. So Hazrat Ibrahim Sahib said, if Allah did not, if Lord, my Rabb did not give me hidayah, so I will be among those who are today lost. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا. So once upon a time, Hazrat Ibrahim Sahib, he saw the shams, the full, sun in proper way, so shiny day, and he said at that time, قَالَ هَذَا بِي, this is my Lord. अब ये देखिए, قَالَ هَذَا بِي, هَذَا بِي, هَذَا بِي, ये this can be taken as a keyword when we have learned at the top. आपको याद होगा हमने कहा था पार्ट बी के अंदर कहा जा सकता है. When he said कि this is my Lord, और उन्होंने फिर क्या कहा, हाज़ा अकबर. Akbar, I think, means big or great. The bigger one, the great one, because he have been through this all experiences now. He have seen the stars, he have observed the moon. So he was comparing कि whenever sun rises, the stars and moon, they vanish. So he said at this time that this is the biggest one, it's the greatest one. Haz Akbar. فَلَمَّا فَلَتْ قَالَ يَقُمْ. When sun set in the evening and the darkness prevailed, so he said कि قَالَ يَا قَوْمْ, O my nation, إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. O my nation, whatever you do shirk, whatever you do, I am out of all of those shirk activities. अब यहाँ पे देखिए आप, बड़े अजीब सी बात है, बड़े मजे की बात है कि when first से लेकर अब तक जो, when Abraham Islam, he was talking about stars and sun and moon, and he was keep calling that Hazar Rabbi. But when finally, when sun it vanished, at that time he, his nation. अब यहाँ पे तो अगर वो तफसीर ली जाए जो केमिस्ट लेता है, जो बहुत सारे मुफस्सिरीन तफसीर ली है, तो उसमें यहाँ पे इनको नेशन को एड्रेस करने को सेंस बनता नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नेशन को एड्रेस किया, या कौमी
O my nation, inni bari'un mimma tushrikun. I am totally free of all of those you do, whatever you make partner, whatever act of worship you do, I am not with you. अब यहाँ पर ये बात क्यों है, अभी आपको मैं बता देता हूँ. फिर लास्ट हम पढ़ लेते हैं. It says, inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara samawat. Then finally, Ibrahim said, I turn my face towards those who has created this heaven and earth. And I'm not among those who do worship, who do make partners with Lord, with Allah. So this is a kind of, you can say, the translation is taken by most of the scholars and it's all taken by the Cambridge Examiner. अब आप ये देखिए कि also did we show Ibrahim the power and the laws of the heaven and the earth, so that he might have certainty. When the night covered him over, he saw a star. He said, "This is my Lord." But when he said, "I do not love things that set." When he saw the moon rising in splendor, he said, "This is my Lord." But when the moon set, he said, "Unless my Lord guides me, I will surely be among those who go astray." When he saw the sun rising in splendor, he said, "This is my Lord, is the greatest." But when the sun set, he said, "O my people, I am indeed from your giving partners to Allah." हालांकि अल्लाह का वर्ड ऊपर है नहीं, देखो रब का वर्ड है, लेकिन ट्रांसलेशन में अल्लाह का वर्ड आ रहा है. देखा तुमने? Yes. तुम दोबारा देखो, इस पूरे कहीं में अल्लाह का वर्ड आया है? No. लेकिन ट्रांसलेशन में अल्लाह का वर्ड ला रहा है. ये तो टेक्निकल मिस्टेक है, कैमरेज मिस्टेक करता है भारत. अच्छा, from me I have set my face firmly and truly towards him who created the heavens and earth, and never shall I give partner to Allah. यहाँ पर भी अल्लाह का वर्ड इसने कर दिया है, अल्लाह का वर्ड नहीं. अच्छा, इसके एक मैं लॉ तुम्हें बता देता हूँ, ये भी बड़े मजे की बात है, इंफॉर्मेटिव है, यू शुड नो अबाउट दैट एज अ मुस्लिम. कि whenever a translator, whenever an interpreter, he translates something from Quran in any language, in English, in Urdu, whatever language, so that translator tries to give the nearest meaning which he understood, that what Allah would like to say in these words. यानी कि जब भी कोई कुरान को ट्रांसलेट करेगा, या इवन हदीस को ट्रांसलेट करेगा, हम सब कुरान की बात करते हैं, तो ही कैन नॉट 100% श्योर कि व्हाट आई हैव ट्रांसलेट करेक्ट. वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जो ट्रांसलेट मैंने किया ये 100% ट्रू है, ये कोई कह ही नहीं सकता. दैट इज द रीजन वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रांसलेशन. ऐसी बात है ना? Yes. जैसे आपको मैं एक मिसाल समझाता हूँ, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, he did not say in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अल्लाह ने ये नहीं कहा. अल्लाह did not say, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. ये देवबंदी उलमा इकराम से ट्रांसलेशन लेते हैं, जो बरेलवी उलमा इकराम उस तरह से ट्रांसलेशन लेते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. सो अल्लाह डिड नॉट से दिस ऑल. तो अल्लाह ने अब ये सब नहीं कहा, तो अल्लाह ने एक्चुअली क्या कहा? अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज द पार्ट ऑफ सूरह नमल. ठीक है, बिस्मिल्लाह. Yes. अल्लाह ने अरबिक में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट ऑफ सूरह नमल. अब इसको हम ट्रांसलेट करें अपने लैंग्वेज के अंदर, हम ये समझते हैं नियरेस्ट मीनिंग दे रहा है. यही वजह है कि ट्रांसलेशन अलग अलग होती है. बात समझ में आ गई बेटा? Yes sir. तो हम भी अगर ट्रांसलेशन लिखेंगे तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखें, बट देयर सम लॉज आर होते हैं. और लॉ ये है कि द ट्रांसलेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट द फंडामेंटल इस्लाम, यानी कि ऐसी ट्रांसलेशन ना हो जो उसकी पूरी मीनिंग को ही चेंज कर दे. मतलब मेन पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट. हाँ, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी ट्रांसलेशन होगी जो मीनिंग को चेंज कर देगी तो टोटल तो गलत हो जाएगा, बल्कि गुनाह हो जाएगा. जैसे आयत करीमा. आयत करीमा क्या है पता है तुम्हें? आयत करीमा नो. आयत करीमा का तला ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. जैसे पार्ट ऑफ कुरान मजीद, बहुत मशहूर आयत करीमा है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ताकि ऊपर जब इंसान परेशान होता है. तो ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, when he was in the whale fish, in the stomach of the whale, and Hazrat Jibreel Salam, he came to Hazrat Yunus Salam and taught him that you have to start this with these words to Allah. So after 40 days, Allah subhanahu wa ta'ala, he accepted his repentance, he forgave him, and whale he spit out on the shore of the sea. ये उनको अल्लाह ने सिखाई. इसके अंदर के इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु, इंडीड या अल्लाह, आई एम फ्रॉम ज़ालिमीन. इन्नी, indeed I am
कुंतु मिन ज़ालिमीन फ्रॉम ज़ालिमीन। लेकिन अगर बजाय ता के ऊपर पेश है इन्नी कुंतु, अगर ता के अंदर पेश है उसको हम बजाय पेश किए उसको हम ज़बर कर देना तो Yes. पूरा मानी इसकी चेंज आएगा। इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, आई एम फ्रॉम ज़ालिमीन। इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, या अल्लाह यू आर फ्रॉम ज़ालिमीन। तो ये तो अगर जान के करेगा तो काफिर हो जाएगा इंसान, Yes. और भूल के करेगा तो गुनाहगार हो जाएगा। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब भी आप ये देखिएगा, जब भी इवन मैं भी ट्रांसलेशन करूंगा ना तो एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं कर पाऊँ। जैसे आपके सामने वाला मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू मीनिंग टू लेट यू नो अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑल अबाउट। Yes. इस तरह एक बात तो ये हो गई। और सेकेंडली बात होनी चाहिए कि जो ट्रांसलेशन हो या इंटरप्रिटेशन हो, दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट ऑफ द फंडामेंटल इस्लाम, यानी कि वो चीज़ फंडामेंटल इस्लाम की भी ना हो। जैसे यहाँ हमारे बहुत ज़माने से एक फ़िरका है जिसको कहते हैं ज़िक्री फ़िरका, ठीक है। और ये ज़िक्री फ़िरका नॉलेज की बात बता रहा हूँ, उसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस इस्माइली शिया मुस्लिम जो हैं, कौन होते हैं इस्माइली शिया मुस्लिम? इस्माइली शिया मुस्लिम हम्म, मतलब जो शिया होते हैं। नहीं शिया तो होते हैं, शिया के अंदर बहुत सारे फ़िरके हैं ना, जैसे सुन्नी फ़िरके हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, फलाना फलाना। नो, इतना इस्माइली नहीं शिया मुस्लिम पता क्या मुझे। है? आखानी मुस्लिम, तो आखानी मुस्लिम। तो इतना ही पता आखानी मुझे। मुस्लिम जो होता है ना, मेरे कुछ रिश्तेदार आखानी भी हैं, ओ। मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार आखानी भी हैं। वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग अपने जमात खाने के अंदर ना दुरूद पढ़ते हैं, बात करते हैं। इसी तरह से एक फिरका जो कहते हैं जिक्री फिरका, ये एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर। इनका जो मेन गढ़ है वो है गुलिस्तान के अंदर, एक जगह है, इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर उनका गढ़ है, वहाँ पर उनका सालाना इज्तिमा होता है। लेकिन कराची के अंदर भी, जिससे ये मकानी वगैरह है ना, लियारी के मकानी, इस बहुत यस। से। अब जिक्री फिरके वाले पता है क्या बोलते हो? आप कहते हैं हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? वो ये कहते हैं कि इन कुरान मजीद whenever Allah use the word of salat, aqimus salat, establish regular prayer. So they say they believe in Arabic language the word salat means to remember someone. The word salat means to make dua. ठीक है? And they say the word salat means to remember someone, means to remember Allah. The word salat also means to make dua, so we can make dua, but this salat does not mean to go in ruku and sujood and do फलाना फलाना। तो वो कहते हैं कि हम जिक्र करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते। तो दे दूसरे की भी जिक्र फिरका। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस इंटरप्रिटेशन is against of fundamental Islam. Yes. Because majority of the Muslims, they do agree, they do ijma that this word salat means a certain type of postures when you do perform salat in isolation, in with jamaat or separately. We have to do qiyam, ruku, sujood, फलाना फलाना। वो हम इंशाल्लाह साथ टॉपिक पढ़ेंगे। तो बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर कोई ट्रांसलेशन या फंडामेंटल खिलाफ हुई तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये वाली बात मैं आपको बता दी। अब आइए दूसरे वर्जन की तरफ। दूसरा वर्जन जो पर्सनली आई लाइक इट, मैं उसको पर्सनली लाइक करता हूँ, लेकिन मैं दोनों के साथ करता हूँ। ज़ाहिर है उलमा कराम ने इस बात कही है, लेकिन मैं पर्सनली दोनों को लाइक करता हूँ। लेकिन लिख रहा तुमको ये जो पहला वाला है वो ये था एक्चुअली कि इब्राहिम इस्लाम के साथ जो वाक़या हुआ है, दिस पैसेज इज सूरह अल-नाम. It is letting us know about the event when Hazrat Ibrahim Islam start preaching Islam to his people. This incident was not that time when he was in search of Allah. ये पैसेज हमें जो स्टोरी बता रही है, ये स्टोरी उस वक्त की नहीं है जब इब्राहिम सलाम अल्लाह को तलाश कर रहे थे, बल्कि पैसेज उस वक्त की है जब अल्लाह he ordered him to preach Tawheed and Allah and about prophet to his people. ठीक है? अब अगर ऐसी बात है तो ऐसी बात कैसे है? वैसी बात इस वजह से है कि इब्राहिम सलाम, देखो मैं यहाँ लेकर आता हूँ। इब्राहिम सलाम he was among those people, he belonged to that community who used to worship sun and moon stars. ये आप देखो पार्टी के जो आंसर है। यस। ठीक, इसको तो पढ़ते भी रहो और फिर बाद में समझ आएगा। मैं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। तो Ibrahim Salam was born in a society, in a family which were doing shirk. They used to worship sun and moon, star and idols. And even his father, which name was Azar, he was so strong, he was so firm and rigid in worshipping idols.
And he was not an ordinary idol worshiper. He was a big, a kind of priest, a kind of pope of that religion. He used to make idol with his own hand. इब्राहिम साहब के फादर कोई आम मुशरिक नहीं थे, बल्कि बहुत कट्टर मुशरिक थे, यानी कि इतने बड़े मुशरिक थे कि वो बाकायदा अपने हाथों से आइडल्स बनाते थे। तो इससे उलमा कराम ने एक चीज़ और एक्सट्रैक्ट की है, मसला एक्सट्रैक्ट किया है, वो ये है कि फॉर अ नबी, फॉर रसूल, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही मस्ट बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली, क्योंकि इफ यू हैव बीन थ्रू कुरान मजीद, so we come across lots of prominent messengers whose family were not Muslim, they were kafir. Yes. Like Ibrahim's father Azar, he was a kafir. Like Yunus alayhi salam's son Canaan, he was a kafir. Like Lut alayhi salam's wife, she was a kafira. तो उलमा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि नबी किसी मुसलमान घर में पैदा हो, किसी काफिर घर के अंदर पैदा हो सकता है। But ulama they said it is essential for that messenger that he must be the legitimate child of his parents. वो अपने माँ बाप की जायज औलाद और नाजायज औलाद ना हो। और दूसरी बात है कि he must belong to a noble family, respected family. एक लुच्चा लफंगा फैमिली ना हो, तो बदनाम फैमिली ना, बल्कि ऑनरेबल फैमिली हो, जो जिसकी लोग इज्जत करते हो, भले से गरीबी क्यों ना हो। तो इब्राहिम साहब इस कैटेगरी में इस तरह से पैदा हुए, तो इस तरह से पैदा हो गए। तो ज़ाहिर है अब नबी को तो पता नहीं होता ना कि मुझे बाद में जाके नबी बनना है, बट अल्लाह नोज आई एम गोना मेक हिम द प्रॉफिट मैसेज, तो अल्लाह प्रोटेक्ट हिम सिंस द वेरी बिगिनिंग। तो somehow Allah subhanahu wa ta'ala is giving him this prophethood, and a time came that Allah ordered Ibrahim salam to preach Islam. अब क्योंकि नबूवत मिल चुकी थी, and he was a very wise, क्योंकि नबी he had lots of wisdom. Yes. Ibrahim salam, he was searching, he was finding, he was waiting for a very suitable time to preach Islam, to motivate the people from idol worshipping or things which they worship towards Allah. So what happened? Once upon a time, there was an occasion when his people, they used to go to worship stars. वो क्योंकि stars को पूजा करते थे, तो खास साल में एक ऐसा मौका आता था जब वो सितारों को पूजते थे। उस वक्त में there was full of, the sky was full of stars और बहुत ब्राइट स्टार स्काई होता था, बहुत फैसिनेटिंग होता था। कभी आपने देखा इस आसमान के ऊपर बहुत स्टार भरे हुए? कभी देखा आपने, ऑब्जर्व किया? Yes. बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, कि खूबसूरत लगता है। तो जब वो टाइम आया एंड पीपल दे लेफ्ट द मेन, या तो लोग उसी जगह पर है जहाँ पे वो रहते, या फिर दे गो टू अ सर्टेन रिमोट एरिया दैट कैन बी अ काइंड ऑफ जंगल और डेजर्ट व्हाटएवर। तो इब्राहिम सलाम भी उनके साथ वहाँ पे गए, एंड इब्राहिम सलाम ही वेंट ओवर देयर विद देम, and he saw what they do, so they start doing worshipping those stars. तो इब्राहिम साहब ने पूछा कि what are you doing, आप तो क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई we are worshiping our Lord, these are our Lord, and Ibrahim, these are your Lord too, ये तुम्हारा भी रब है। तो इब्राहिम साहब ने कहा अच्छा, हाज़ा रबी, these are my Lord। तो इब्राहिम साहब ने उनके इस क्वेश्चन को, उनके इस इंफॉर्मेशन को काउंटर किया कि as you say कि these are my Lord, okay, let's see what happened। तो उन्होंने कहा मैं खुदा, इब्राहिम साहब को तो पता था ना कि मेरा खुदा नहीं है और क्या होने वाला है। तो क्या हुआ कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज आया ना, तो सारे स्टार्स गायब हो गए। तो इब्राहिम साहब ने कहा ये है बेस्ट टाइम है कि मैं इनको रीच करूं। इब्राहिम साहब ने कहा कि भाई यू टोल्ड मी कि दिस इज माय लॉर्ड, हाउ कैन दिस आई एम कैन नॉट रेजिस्ट, ये तो खत्म हो गया। तो जब उन्होंने बात की तो उनकी कौम लाजवाब हो गई, यार ये बात तो बड़ी सही कर रहा है, लेकिन वो पूछते थे जो खामोश हो गए। आई गेट योर पॉइंट? यस। तो ये बात जो है ना, तो ये एक तफसीर ये भी जो मैं इसको लाइक करता हूँ कि हाँ ऐसी बात होगी। बहरहाल लोग खामोश हो गए, बट दे डिड नॉट रिटेलिएट, कुछ नहीं किया, क्योंकि जब रिटेलिएट जब तब आगे स्टोरी आ रही है, पता चलेगा। Another occasion when there's a full moon, and that night his people, they used to go to a place where they used to worship full moon, and they worship the moon. तो इब्राहिम साहब went with them over there, इब्राहिम साहब के साथ वहाँ पे गए, और वो खामोशी से देखते रहे और क्या करते हैं, वो इबादत करते। उन्होंने कहा भाई व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर तुम लोग? तो उन्होंने कहा भाई हम तो इबादत कर रहे हैं, because these are Lord, how beautiful this full moon is, and this इब्राहिम, ये तुम्हारा भी रब है, हमारा तो है, तुम्हारा भी रब है, तुम तो पूछते ही नहीं हो, पूजा नहीं करते। तो इब्राहिम साहब ने देन कहा कि हाज़ा रब्बी, it's my Lord, and he waited. Next morning when sun rises, the moon vanished. So again Ibrahim Salam, he preached his nation कि भाई how you can tell me to worship something which cannot exist, and if my Rabb did not guide me, I would be among you. यानी कि this kind of preaching,
लेकिन तबलीग के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, हिकमत बताना ही होती है। तो उस वक्त उनकी कौम बड़ी खामोशी की, यार ये जी बात कर रहा है, बात तो सही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो उसकी पूजा करते हैं। अब क्या Yes. हुआ, एक और वक्त आया कि when they used to worship the full, I mean sun, एक खास मौका आता है, या तो सनस्क्रिप्ट होगा या कोई ऐसी चीज होगी। So then when they used to worship sun, तो जब हज़रत इब्राहिम सलाम के साथ गए, and when he asked them what are doing, they say कि this is our Lord, and this is your Lord also. You can see you have a decline of previous uh, beliefs like stars and moon, and this is the biggest one. तो इब्राहिम सलाम कहते हैं हाज़ा अकबर, ये सबसे बड़ा खुदा है। लेकिन he knew उसकी जनाब कि जब शाम आएगी, when sunset दोबारा darkness prevail हो जाएगी। When sunset, इब्राहिम साहब ने कहा कि भाई I cannot worship those, and he कि oh my people, I'm out of those belief or those act of worship you do, and I'm facing towards my face towards those who created all things. So it means in this, इसके translation के हिसाब से, इनके translation के हिसाब से ये पता चलता है कि this verse is letting us know about the event when Ibrahim Salam, he was using different method, different moments, timing to preach Islam and preach Tawhid to his people and bring Yes. them towards idol worshiping to Tawhid. अब इसके अंदर आप ये देखिए, एक इंसिडेंट ये भी लिखा हुआ है। ये तो बात के में आपको पता है, बहुत मशहूर वाक़या है। अब इब्राहिम साहब ने काम सब चीज़ बता दी कि जनाब ये सन स्टार मून तो नहीं हो सकता, तो यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आज़र जो था, यूज्ड टू मेक हिज ओन हैंड, तो हिज पीपल दे यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स। तो इब्राहिम साहब ही डिसाइड कि भाई मैं इनको बता दूंगा कि भाई कैसे ये आइडल्स कैन नॉट बी आवर गॉड। वंस अपॉन अ टाइम Yes. हिज नेशन they used to go out from their main city to worship idols, sun, moon, star at night. तो जब वो गया, या तो दिन का वक्त होगा या फिर रात का वक्त होगा, अल्लाह knows better कौन सा वक्त है। तो when they left their city to worship their uh, deity they created, they made as Allah, and they asked Ibrahim to go with them, तो इब्राहिम साहब he made excuse, इब्राहिम साहब ने बहाना कर दिया, हीला कर Yes. दिया। तो वो कहा ठीक है भाई। तो when they went over there, अभी आपको पूरी कहानी पता होगी, आप तो बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे। इब्राहिम सलाम he went to the place, the church, the synagogue, जो भी आप कह सकते हैं, where they place different idols big and small over there। जैसे तुम्हें पता है कि लक्ष्मी देवी दौलत की देवी है, इतना भी जंग का देवता है, फलाना फलाना। Yes. And so wisely Ibrahim Salam with his axe he broke all the idols। किसी की हाथ तोड़ दिया, किसी की नाक तोड़ दी, किसी टांग तोड़ दी, किसी को पूरे तोड़ दिया। And very wisely he put the axe on the shoulder of the biggest idol over there and left the place। So when his people came back to the main city and they found that their idol was broken down, their god was broken down, they became so furious, they became so arrogant कि भाई what happened to them, किसने किया? There was no one left in city except Ibrahim alayhi salam. Yes. And they somehow believe Ibrahim is among those people who don't like our rituals, who don't believe in our God। तो उनको ये शक हुआ कि ये काम जरूर इब्राहिम ने ही किया होगा, क्योंकि हम तो सब इसको अल्लाह मानते हैं। तो दे समन इब्राहिम अलैहि सलाम, शैतान ने, नमरूद ने उनको बुलाया और कहा कि भाई, और फिर आने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इब्राहिम कुरान क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इब्राहिम डिड यू डू दिस टू आवर लॉर्ड, क्या तुमने हमारे साथ खुदा के साथ तुमने ये काम किया? तो इब्राहिम साहब ने सो वाइज, अब देखो इब्राहिम सलाम ने क्या जवाब दिया जबरदस्त। उन्होंने कहा भाई आस्क द वन बिगेस्ट वन, सारे छोटे तोड़ दिए, जो बगा सबसे बड़ा था, आस्क द वन हु हैज द एक्स ऑन हिज शोल्डर, उससे पूछे जिसकी शोल्डर के अंदर वो कुल्हाड़ी है, वो बताएगा आपको किसने किया। दैट्स इट इब्राहिम, डोंट यू नो they can't speak। This was the turning point, this was the main point Ibrahim Salam was waiting। And when they said publicly to Ibrahim Salam ki Ibrahim they cannot speak, at that time Ibrahim Salam ke, if you do by yourself, you said they cannot speak, how do you worship them? We cannot speak, Yes. you worship them, make your own। how wisely, this called the wisdom of a prophet। फिर उसके बाद लंबी कहानी जनाब के कैसे they he punished them all। anyway, तो इसका जो पैसेज के जो मेन थीम है ना, दैट इज अबाउट द स्टोरी ऑफ इब्राहिम सलाम। यू शुड राइट दैट व्हिच इज सेड बाय द कैंजर, ही वाज इन सर्च फॉर तौहीद। और क्योंकि मैं पर्सनली कहता हूँ कि हाज़ा रबी इब्राहिम सलाम से मंसूब है, तो व्हाट आई थिंक that it is not it is against the honor of a messenger
either gains the honor or profit that he claims something as his Rabb for a microsecond. इनके इब्राहिम साहब ने हाइपोथेटिकली भी कहा दिया हैदर कि मेरा खुदा है, तो ये अजीब सी बात है कि एक नबी जो है वो किसी के बारे में ऐसा कह रहा हो। बहरहाल तो उलमा कराम की बात है, Yes. मैंने आपको दोनों वर्जन दे दिया है। आपके लिए बेहतर ये कि आप उसी वजह को फॉलो करें जिसको कैबिज कर रहा है। इसके पार्ट देखें आप, वेरी इजी। The verse invite Muslims to ponder God's unique power. The importance of this passage in Muslim life is that we should start pondering and think about Allah's creation. देखिए अल्लाह ने Yes. कुरान में कहा ना कि the mu'min are those who do search Allah's creation and say, या अल्लाह, you do not create them without any reason. बल्कि वो कहते हैं अल्लाह जो बनाया इसकी कोई रीजन हो सकती है। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा जगहों पर Muslim should completely submit and surrender the front in front of Allah, not his sign, because these are for human use. These all created by Allah, sun, moon, stars, air, fire. These are created by Allah for human. These are Allah's creation. Even the health is Allah's creation. The weakness, the disease is Allah's creation. The death is Allah's creation. सब अल्लाह की मखलूक है, ठीक है ना। जिंदगी, सेहत, मौत, दौलत सब अल्लाह की मखलूक, और ये अल्लाह की मखलूक जो अल्लाह के हुक्म से काम करती है, उसके हुक्म के बगैर काम नहीं करती। तो वी शुड टर्न आवर फेथ टू अल्लाह, हु इज द रियल क्रिएटर। Yes. नथिंग कैन गिव अस एनी बेनिफिट। पैसा जो है ना, ये हमें खुश नहीं दे सकता, पैसा हमें Yes. लग्जरी नहीं दे सकता जब तक अल्लाह का अमर ना हो। If Allah put his amar that this money will give him benefit, luxury, comfort, तो वो पैसा उसके लिए बायस रहमत होगा। अदरवाइज that money can be a cause of his murder. एक आदमी ने पैसे निकाले, देना 50 लाख रुपए बैंक से कि भाई जाके मुझे गाड़ी खरीदनी है, टोकन देना है, गाड़ी चलाऊंगा। जैसे निकला बंदों ने पकड़ लिया, भाई लगाओ तुम तो बैंक से पैसे लेके निकले, मेरे पास पैसे ऐसे खीरा के गोली मार दी, बेचारा मर गया। तो 50 लाख तो कंफर्ट खरीदना जा रहा था, लेकिन अल्लाह का अमर था कि ये 50 लाख से मौत का सब बनेगा। बात समझा नहीं बेटा? Yes, sir. अल्लाह पे निगाह डालो, अल्लाह पे हर चीज अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह करेंगे, बस हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है ना, अल्लाह की दी हुई है। कितने से लोग बेचारे जो नॉर्मल है, उनका कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने Yes. नॉर्मल पैदा कर दिया। तो अल्लाह ने हम तो माशाल्लाह अल्लाह ने जहन दिया, अल्लाह ने, तो हमें यूज दिस थिंग। Communication is the greatest human weakness and an unforgivable sin. So we have, अल्लाह ने कहा इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, Allah will not forgive shirk because it's a great sin. Allah SWT has sent almost 124,000 prophets for the reason to keep humans away from shirk. It decides before has a purifying impact on the heart of Muslims. So this is one of the impact, one of the important passage. When we keep reciting this verse again, it purifies our soul. It purifies our hearts from worldly things. ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या उन चीज़ों का है जो कि ओबिडेंट थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी चीज़ों पे विच अल्लाह हैज क्रिएटेड। जैसे हम कभी सोचते हैं ना कैसे ये काम बन जाएगा, ये काम भी अल्लाह के हुक्म से बनेगा, वरना बात का तो उल्टा पलट में आ जाएगा। The verse also tells about God's will and wisdom of granting prophet to his chosen man in a variety of ways. So अगर if we are taking the translation or interpretation of the first version, so we can say that this is also the importance for Muslim to let us know how Allah grant prophethood to his chosen man in variety of way. So prophethood has been given जैसे variety of way, जैसे Ibrahim Samos keep searching Allah in sun and moon and stars, and finally he got the prophethood that Allah subhanahu wa ta'ala created this. जैसे यूरिस्टोड मूसा अलैहिस्सलाम, लंबी कहानी है, कभी मौका तो बताऊंगा। When he's coming back from Sana to Egypt to meet his mother and sister, Yes. and he was with his wife, he was a Shuaib की बेटी थी। So at night, that was severe cold night, dark night, and they were very much in cold. So he saw a fire at the top of the mountain that was cool. So he said to his wife, "Stay back over here. I saw some fire at the top of the mountain. So let me go over there. I might fetch some fire. ठीक है ना, मैं कुछ आग लेकर आऊँगा, and I might get the way. कोई वहाँ पर इंसान होगा, बंदा होगा, उससे पूछूंगा हम कहाँ जाए, रात अंधेरी रात है। तो Musa time he went to the Mount to fetch some fire, and there was some fire over there. But when he reached over there, he saw what? He saw a tree, and the nur was coming from that tree. That there was no fire. वो सुबह शौक कि भाई कैसा तरह से नूर निकल रहा है। तो फिर जब वो घबरा गए, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा अना अल्लाह, मैं तो अल्लाह हूँ। अब वो दरख्त अल्लाह थोड़ी थे,
Yes. उस दरख्त के थ्रू अल्लाह ताला बताना चाह रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैं अल्लाह हूँ, and Allah gave him the prophethood. So the point I would like to tell you over here that this passage is also let us know the different ways Allah used to give prophethood to his selected people, like Musa अलैहिस्सलाम was given like that and Johnson like that. Mhm. ठीक है भाई. Yes. अब आइए जनाब सूरह अल-माइदा. This is also one of the very interesting. ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक क्वेश्चन आता है about the stories of prophets के बारे में, तो ये हमें सब नॉलेज होना चाहिए. अब सूरह अल-माइदा के वर्सेस नंबर 110 है 1110. This is a story of Hazrat Isa alayhi salam, particularly that Allah subhanahu was reminding him that what blessing he has given to him. إِذْ قَالَ Yes. اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. Ulama and Muhaddisin, they have said that this event will become on doomsday. या तो ये क़यामत के दिन की बात होगी, क़यामत दिन ऐसा होगा, और ऐसा भी होगा, हदीस के अंदर ये भी आया, और Allah would like to remind Isa alayhi salam his blessings upon him. Yes. यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही when he was preaching Islam, तो अल्लाह ताला ने को रिमाइंड कराया. क्या क्या रिमाइंड कराया? इज़ क़ाल अल्लाहु, when Allah says, किसको कहा अल्लाह ने कहा? या ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, उस्कुर निमती, जिक्र करो, रिमेंबर दोस नेमत, blessings अलैका, I give you, वाला वालिदका, and your walida, your mother. Allah subhanahu wa ta'ala, in this passage, Muslim is giving this idea or this theme that Allah subhanahu wa ta'ala is reminding Isa alayhi salam to remember all of those blessings which I gave you and your mother. So these Yes. are a few of Allah's blessings. अब इनकी स्टोरी है, मैं थोड़ा सा मैं समझा दूं इंटरेस्ट के लिए. ईसा अलैहि सलाम मदर मरियम, मरियम पेरेंट्स यानी कि ईसा अलैहि सलाम के नाना नानी Yes. इमरान, they had no child, उनकी कोई औलाद नहीं थी. ईसा अलैहि के जो नाना नानी थे कि मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद नहीं थी, तो दे प्रेड टू अल्लाह, दे डिड अ मन्नत. मन्नत समझते हो? No. मन्नत बहुत सारे लोग मानते हैं ना, अल्लाह ताला मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतने रकात नमाज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं इतना सदका करूंगी. Oh. ठीक है ना? तो ये बहुत सारे लोग जाके उसी तरह गलत गलत मन्नत भी मानते हैं. हमें सिर्फ दुआ अल्लाह से माननी चाहिए. तो उस जमाने में देखते हैं उन्हें दे प्रे टू अल्लाह, ओ अल्लाह, वी हैव नो चाइल्ड, इफ यू गिव अस अ बॉय, अ मेल चाइल्ड, वी विल डेडिकेट दिस इन योर सर्विसेज. तो जैसे अभी भी एक अजीब सी बात है, अल्लाह माफ करे, यहाँ पर एक मज़ार है शायकीक. शायकीक इंटीरियर सिंध के एक बहुत बड़ा मज़ार है. वहाँ पर लोग जाते हैं बेचारे, और वहाँ पर उनके बिलीव ये है कि वहाँ पर एक वो है झूला, ठीक है, जिसमें बच्चों को करते हैं. तो जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते ना, जाके झूले को झुला देंगे ना, तो वो उनकी औलाद पैदा हो जाती है. अस्तगफिरुल्लाह, शिर्क है ये. ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक कस्टम है. कस्टम ये कि जो भी पहला बच्चा पैदा होगा उसको आप डेडिकेट कर देंगे मज़ार के लिए, वो साहिब मज़ार के लिए आप डेडिकेट कर दो. तो जो पहला बच्चा पैदा होता है ना, ये शिर्क है. जो पहला बच्चा पैदा होता है तो दे यूज्ड टू टेक that child to that mazar shaykik, and they donated, they submitted their child over there forever, and all of those caretaker of that shrine, they brought them up towards their maturity and so on. तो वो क्या करते हैं कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करते हैं, उनके उस बच्चे के सर में ना लोहे का कैप पहना देते हैं. तो क्या होता है इसका, तो बच्चे की बॉडी फिजिकली बढ़ती है लेकिन उसका जहन नहीं बढ़ता. तो उसका जहन नहीं बढ़ता तो ही बिकेम एबनॉर्मल हो जाता है. और फिर वो उससे क्या करता है, वो भीख मंगवाता है. आपने कभी देखा है कराची के अंदर कोई भीख मांगते जिसको इतने शाहदुल्ला के चूहे? Have you ever seen this type of beggars whose head is very small? और उनकी अजीब सी शक्ल होती है, उनका सर छोटा होता है, बॉडी बड़ी होती है. नहीं देखा तुमने ना? कभी मौका मिले, पहले बहुत इस तरह के होते थे, आजकल कम हो गए हैं. उनको कहते हैं शाहदुल्ला के, जो भीख मांगते हैं. वो कभी ग्रीन लिबास पहने होते हैं, कभी क्या लिबास पहने होते हैं. तो बहरहाल ये एक शिर्क का काम है. अल्लाह हमको महफूज करके. बताना चाह रहा हूँ कि सेम it was asked by Maryam's mother to Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala, they accept their prayer and Allah gave them a baby girl. तो अल्लाह क्योंकि बहुत नेक लोग थे, अल्लाह ने दुआ कबूल की. अल्लाह को बेबी गर्ल दे सेट किया. अल्लाह, we asked you about a boy and you gave us a daughter.
हमने तो आपसे बेटा मांगा था, आपने बेटी दे दी. इवन देन they decide कि भाई हमें इस बच्ची को डेडिकेट करना है for Allah's cause. So they took Maryam Salam to Jerusalem, Baitul Maqdis, and they went to the priests and popes and the people who are taking care of the house of Allah, Yes. and they said, we would like to dedicate this baby girl to Allah. And they told them the whole story. So when they told the whole story, so everyone, they became so surprised by she is a very sacred, a holy child. So everyone would like to take her in his custody or in his Yes. supervision. सबने कहा इस बच्चे को तो हम गोद लेंगे. तो बहरहाल वहाँ पर एक डिस्प्यूट पैदा हो गया, एंड दे ट्राई टू मेक अ लकी ड्रॉ कि भाई हम नाम ड्रॉ करते हैं, जिसके नाम पर आएगा वो बच्ची ले लेगा. अल्लाह's will, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, नाम सुना है ज़करिया अलैहिस्सलाम का? Yes, sir. हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज एग्जिस्टिंग मैसेंजर. उस वक्त वो अल्लाह के मैसेंजर थे, नबी थे उस वक्त. उन्होंने अपना नाम डाला और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला है. हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज अ रिलेटिव ऑफ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम. Yes. विद अल्लाह's will किसी का नाम भी नहीं निकला, बल्कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला जो उनके रिश्तेदार भी थे, क्योंकि अल्लाह को प्लानिंग थी ना कि अल्लाह को करना क्या था. तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बिकेम हर केयर टेकर. इसी से समहाउ एक कॉन्सेप्ट निकला है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जिसको कहते हैं नन. नन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको पता है, Yes, yes. वो नन जो होती है कभी शादी नहीं करती, और जो पोप होता है वो कोई शादी नहीं करता. हालांकि ये अननेचुरल, अन इस्लामिक है, लेकिन भारत के मजहब के अंदर है. सो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, he started taking care of Maryam Islam, and he knew that she is a very blessed child, and he started teaching her about Islam and Tawhid and so and so. Yes. So, and since the very beginning, he was observing that this girl is having something very special power, a special blessing which comes to her from Allah. So as Maryam Islam, she became adult. जब वो जवान हो गई, तो she told Hazrat Zakir Islam that I would like to make पर्दा, please make a separate chamber for me. लेकिन पर्दे का जो हुक्म है ना इस्लाम के अंदर, पर्दा करने वाला, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि इस्लाम से पहले भी जितने भी मज़ाहिब थे मुसलमानों के, सब के अंदर औरतें पर्दा करती थी, हिजाब करती थी औरतें. इस्लाम के अंदर नहीं, इससे पहले भी होती थी. तो जब मरियम जवान हो गई, बालिग हो गई, मैं पर्दा करूँगी, मैं कमरा बना दें. तो ज़करिया अलैहिस्सलाम, he made a separate room for her, and she started spending her days and nights worshiping Allah. It is also said in the Quran के अंदर ये भी आया कि whenever Hazrat Zakir Islam, when he entered into her room with her permission, Hazrat Zakir, he found unseasoned fruits. कुरान के अंदर ये भी है. तो वो पूछते थे, मरियम, who gave it to you? These are unseasoned fruits. इसका मौसम ही नहीं है फल का, ये तुमको किसने दिया? तो she said, Yes. Allah, my Lord gave it to me. मेरे अल्लाह ने दिया. तो बड़े हैरान होते थे, लेकिन उससे कहते भाई बहुत नेक बच्ची हो सकता है, अल्लाह ताला ने अपनी किसी तरह से पहुंचा दिया. तो एनीवे, व्हाट द पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि शी वाज इन अ स्टेट ऑफ दिस प्योरिटी एंड यू कैन से spirituality. In that condition, once upon a time, Ibrahim Islam, he came in her room in a shape of a man. Ibrahim Islam के कमरे में आया तो हज़रत इस्लाम ने कहा कि गो अवे, हु आर यू, तुम कौन हो भाई, जाओ यहाँ से, डोंट नो दैट आई डू पर्दा, मैं तो पर्दा करती हूँ, तुम पता नहीं कहाँ से आए, कौन हो. वो ही समझे कि शायद को मर्द है. Yes. इब्राहिम साहब कहते नो, आई एम नॉट अ मैन एंड आई एम एंजल जिब्राइल साहब, डोंट वरी, डोंट बी स्केयर्ड, आई केम ओवर हियर टू गिव अ ग्लैड टाइडिंग, अ गुड न्यूज़. तो उन्होंने कहा अच्छा, व्हाट ग्लैड टाइडिंग आर गोइंग टू बी गिवन. उन्होंने कहा कि वेरी सून Allah will bless you a holy son, a child, and this will be so sacred, and Allah will make him a sign for, क्या कहता है, आयतुल नास. आयत कहता है में साइंस को, ठीक है ना, लैंडमार्क्स को, गाइडलाइंस को. आयतुल नास, अल्लाह इज गोइंग टू मेक हिम द साइन फॉर द मैनकाइंड. तो मरियम सलाम कहती है, हाउ इज दिस पॉसिबल, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, मैं तो शादी भी नहीं हुई, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो गलत काम भी नहीं किया, मैं बच्चा कैसे होगा. क्योंकि ये अल्लाह का कानून है ना. अल्लाह ताला, देखो, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत शो की है हमारे ईमान पुख्ता करने के लिए, बट अल्लाह ताला दुनिया को एक सिस्टम के तहत रन करता है. Yes. अल्लाह ने अपना पावर दिखा दिया. अल्लाह का सिस्टम क्या है, जब हमारे अम्मा अब्बा की शादी तो हम पैदा हो गए, हमारे अम्मी अब्बू की शादी भी. अल्लाह हैज क्रिएटेड मैन विदाउट एनी फादर एंड मदर. अल्लाह क्रिएटेड मैन विदाउट एनी मैन एंड वुमन. हु वाज दैट? Who is he?
बिल्ला किसको Uh, बनाया? I आदम think. अलैहिस्सलाम को. Oh, yes, 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 yes. अल्लाह क्रिएटेड अ वुमन विदाउट एनी मदर. किसको Hmm. बनाया? A हव्वा woman अलैहिस्सलाम without. को. Yes, Hazrat Adam की wife. हाँ, उनकी रिप से. Hmm. और बगैर फादर के बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम को. तो अल्लाह हैड Hmm. शोड अस हिज पावर. लेकिन अल्लाह ने दुनिया में रखा कि जब हमारे अम्मी अब्बू की शादी हुई तो हम पैदा हुए. तो अल्लाह ने Yes. कुरान की चीजें इसलिए बताई बेटा कि हम बिलीव करें कि जो कुछ अल्लाह ही है भाई. अल्लाह के अलावा कुछ भी Hmm. सब बेकार है. अल्लाह अगर आपके साथ होगा तो पावर आपके साथ होगी. तो उन्हें कहा ऐसा हो नहीं सकता. तो उन्हें कहा हजरत जुरान से कहते हैं इट विल हैपन बिकॉज दिस अमर अल्लाह. और अल्लाह का अमर है, ये ऐसा होकर रहेगा. अब यहाँ पे डिफरेंट नरेशन हैं कि क्या हुआ. किसी का बाद नरेशन के अंदर कि हजरत जुरान ने उनको दम किया तो प्रेग्नेंट हो गई. सब किसी ने कहते हैं कि उन्हें सर पर आता कबाल वो शी गॉट प्रेग्नेंट. जब प्रेग्नेंट हो गई और व्हेन टाइम कम्स टू डिलीवर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उनको ऑर्डर किया यू हैव टू लीव द मेन सिटी. आप मेन सिटी छोड़ के आप जंगल में चले जाए. Hmm. तो शी लेफ्ट द प्लेस एंड शी वेंट टू द रिमोट एरिया एंड शी सेट अंडर ट्री. अल्लाह ने कहा कि इस दरख्त के नीचे बैठ जाओ. अब मिराकलसली क्या होता है कि व्हेनेवर शी वाज इन नीड ऑफ फूड द trunk of the branch of the tree comes down toward her Maryam Islam. It was perhaps the dates tree. तो उससे फल खा लेती थी खजूर वगैरह और पानी भी पी लेती थी. इस तरह शी डिलीवर्ड हर ईसा अलैहिस्सलाम. अब Yes. यहाँ से जो ट्रू बात शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है जो आप इस पैसेज के अंदर भी आ रहा है. अब जब हजरत Hmm. ईसा हो गए उनके तो शी हैड टू कम बैक टू हर पीपल and she said, Allah, when I will go back to my people will question me, they will abuse me, tease me, taunt me, and they will raise finger on my chastity. तो मैं क्या कहूँगी, मैं कैसे वो अपने आप को सेव करूँगी. तो अल्लाह ने रिलीज किया कि डोंट टॉक इन देम, जस्ट टेल देम आई एम इन स्टेट ऑफ फास्टिंग. तो Hmm. उस जमाने में ना जैसे हम लोग रोजा रखते हैं ना, उस जमाने के Yes. अंदर रोजे होते थे. रोजा तो बहुत शुरू से आदम सलाम के दौर से ही रोजे हैं फास्टिंग. Hmm. उसके मेथड डिफरेंट डिफरेंट होते थे, ड्यूरेशन मेथड वगैरह. जैसे बहुत सारे लोग you know that in previous nations they were allowed to drink but they were allowed to eat. In some nations they were allowed to drink eat but they were not allowed to drink. So on past they Yes. were nations who were not allowed to eat cook meal or meat. उस जमाने के अंदर ऐसा होता था कि लोग खामोशी का रोजा रहते, चुप का रोजा रहते थे. Hmm. Those people who are very talkative and if they want to become trained people, बहुत ज्यादा बात करना भी सही नहीं होता. ठीक है, Yes. कम बात करना चाहिए. हुजूर सब ना कम बात करते हैं. वो नॉट अ टॉकेटिव पर्सन. हम Hmm. लोग बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए. तो उस जमाने चुप कर रोजा रखते थे ताकि इंसान की ना वो बहुत ज्यादा बड़ा करने वाली आदत ना वो खत्म हो जाए. तो उन्होंने कहा भाई आप कहते हैं मैं रोजा चुप का रोजा है. तो व्हेन शी टुक हिम बैक टू हर नेशन क्वेश्चन के मरियम व्हाट हैपेंड टू दिस चाइल्ड, वी बिलीव इन यू दैट यू आर अ गुड गर्ल and how Hmm. can it happen. So she said I cannot reply. Yes, and she showed people to ask this baby that from where he came on earth. At that time, they replied, कि मरियम, you don't know that baby, infant baby cannot speak. ये तो अभी पैदा हुआ, अभी तो एक दिन का Yes. बच्चा कैसे बात करेगा. तो अल्लाह ताला यही Hmm. बताना चाह रहे हैं. क्या बताना चाह रहे हैं कि इस ज़्यादा बिरुल कुद्स तुकल्लिमु नास फिल महदी वल कहला. तुकल्लिम कलाम करना, बात करना. That oh Maryam, oh Isa, remember that Allah gave you and your walida so much blessing with the help of Ruhul Quds. Ruhul Quds, Jibreel Sam को भी कहते हैं. Jibreel Sam given different names. That he spoke to the man when even you were in cradle and became mature. So it means Yes. Allah SWT made Hazrat Isa capable to speak to the mankind when he was an infant baby, and Allah made him capable to speak to the mankind when he was adult, when he became mature. And कैसे Hmm. कैसे बनाया अल्लाह ने, वज़ अल्लमल किताब वल हिकमा. Allah SWT said कि I taught you the book and I taught you the wisdom and I taught you the Torah, the Old Testament, and Injil, the New Testament. So Allah SWT is reminding in this passage, the main theme in this passage is that Allah is reminding blessings of Allah upon her Islam in a shape of giving his power to speak to the Hmm. mankind when he was an infant baby, giving his power to talk to the mankind when he was a mature adult, and he was so wise, so intelligent that he used to talk uh, people about the Old Testament, Torah, the New Testament Bible which revealed to him, and Allah taught him the book and hikmah. Wisdom is very very important thing. याद रखिएगा, wisdom is totally different thing होती है. ये Yes. जरूरी है कि
कोई पढ़ा लिखा आदमी वाइज भी हो, पागल भी हो सकता है, बेवकूफ भी हो सकता है, चीटर भी हो सकता है। विजडम जो है ना, जाहिल आदमी के पास भी हो सकती है। बहुत कायदे से आपसे बात Hmm. करेगा, आप बोलेंगे यार ये है तो अंगूठा छाप, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। देन Yes. Allah subhanahu has reminded that وَيَسْتَخْلُقُ مِنْ طِينٍ كَهْيَةٍ طَيْرٍ. At that time, अब यहाँ पर अब कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ. The other miracles that he made to bird with the clay, and he just blow into it, it start flying. ठीक है ना? And he made Yes. bring dead to life. He made by birth blind. He gave him a power to see the. He gave the power sighting the thing, and of those uncurable disease like leprosy, he made them all cure with his own hand. And this all happened with his izn, with Allah's order. यानी कि इसके अंदर ये भी आप देखिएगा कि वॉट एवर मिरेकल इज शोन बाय अ मैसेंजर, इट इज ड्यू टू अल्लाह's power. Those supernatural things Yes. which is done by a messenger is called mu'jiza, and those supernatural which is done by a waliullah is called करामत. लेकिन अरबिक के अंदर, इंग्लिश के अंदर सिर्फ दोनों के लिए एक ही वर्ड है, वो मिरेकल्स. हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं. मुआवजा अलग चीज होती है, करामत अलग चीज होती है. तो द पॉइंट Yes. होते हैं when Allah was keep reminding him about these blessings, that he was capable to bring that alive, he was capable to make a bird and make it to fly, give it to life into it. He made an curable disease. That man became pure with his own hand, and he gave the sight of power of science, seeing something with a blind person. ये सब किस वजह से हो रहा है? विद अल्लाह विल की वजह से हो रहा है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप सुना देता हूँ. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. देखो, Allah SWT he sent messengers. Allah sent his messengers to nations when that nations cross the limit. जब कोई नेशन Yes. अपने लिमिट क्रॉस कर जाती है, and they were in total loss, to Allah SWT sent a new messenger, a new Hmm. rasul to bring them back to the right path. Every nation they had their own fitna. अब Yes. ये काम, क्योंकि नबी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेज वाला था उनका, उनके बाद तो कोई नया नबी आएगा. नबी काम कौन करेगा? ये काम हम करेंगे, हम और आप करेंगे, हम और आप तबलीग करेंगे. अब कोई नया नबी आके तबलीग नहीं करेगा, हमारा काम है. हमसे पहले तबलीग के लिए नबी आया करते थे, मैसेज आया करते थे. तो हर नेशन दे हैड इंडल्ज इन देयर ओन फितना. जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में द फितना, यू नो, फितना, फितना वाज अ ट्रायल, अ टेस्ट. मूसा Yes. अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर फितना क्या था? मैजिक. Hmm. दे वर एक्सपर्ट इन मैजिक. बच्चा बच्चा जादू जानता था. उतना एक्सपर्ट थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, इंसान को गधा बना सकते थे वो. इस उम्मत के फितना क्या है? माल. होली पर्सन सेड दैट द फितना ऑफ माय उम्मत इज माल, द मनी, फॉर्चून. At Hmm. that time, Bani Israel, at the time of Islam, their fitna was medicine. उस जमाने के अंदर ना, उस दौर के लोग फितना क्या था? वो मेडिसिन के अंदर इंडल्ज थे, एंड दे वर क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ मेडिसिन व्हिच कैन गिव हील टू एवरी काइंड ऑफ डिजीज, एंड दे क्रॉस द लिमिट. आपको इस बात सुन के बड़ी हैरानगी होगी. इट इज रिटन इन सम अहादीस एंड सम तफासीर that before Islam, the Christian people, Bani Israel people, they were trying to create a medicine which can bring dead alive. जैसे अभी तुम्हें Oh. पता है ना कि बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपना बॉडी को प्रिजर्व कर दिया है, Hmm. कि मतलब बायोलॉजिकली हमको दोबारा जिंदा कर दे. पता है ना ये बात? वेस्ट के अंदर Yes. ये Yes. हो रहा है. तो बनी इसराइल ने जमाने में क्या किया? दे वर सो मच indulged in medicine that they tried to bring they would try to invent a medicine which can bring that alive. और वो somehow तैयार, बाद दर्शन के अंदर आता है कि उन्होंने वो दवाई बना भी ली थी. अल्लाह विल, अल्लाह ने Hmm. उनको पावर दे दी थी कि वो दवाई बना ली. उन्होंने प्रैक्टिकली किया. It is narrated that they selected a dead body, Yes. they laid that body properly, and they placed a pot in out of you can say over his head, over his Hmm. face. वो डेड बॉडी लड़ा के उसके ऊपर एक पॉट उन्हें हैंग कर दिया. उसके एक माइनर सा उसने होल कर दिया, उसके अंदर दवाई डाल दी, एंड दैट वाटर और लाइक व्हाटसएवर आप हयात कह लो, कोई सिरप कह लो, it was going Yes. into the mouth of that person drop by drop for a certain time. Hmm. वो दवाई हल्की हल्की उस मुर्दे के मुंह में जा रही थी. वो मुर्दा आहिस्ता जिंदा हो रहा था, और बहुत नजदीक से वो मुर्दा जिंदा हो जाता. Yes. अजीब बात है ना? उनके लग रहा है ना अजीब Hmm. सी बात. अल्लाह ने क्या किया? Allah sent an angel, and angel he kicked that pot, and that pot was broken down, and all the medicine was, I mean, wasted. Yes. दवाई खत्म हो गई. वो मुर्दा मुर्दा ही रहा.
The point is this, that they were so much indulged in that thing and they crossed the loop. समझ भाई हम तो खुदा है, खुदा हम तो सब कुछ कर सकते हैं. At that time, Allah SWT put them in trial and Allah sent them a disease that called leprosy. जैसे कुछ साल पहले हमारे पास था ना COVID-19, Yes. कैंसर, ये ऐसी बीमारियां जिसका इलाज ही नहीं था. तो अल्लाह ने उनको ये कहा कि भाई you are trying to bring that alive, okay, try to make a medicine for this disease. Allah sent them leprosy. जब वो बर्स का मर्ज आ गया, लेप्रेसी का मर्ज आ गया, तो उनको तो दवाई नहीं थी. तो अल्लाह ने कहा कि तुम तो कहाँ मुर्दा जिंदा करने के चक्कर में थे, इस बीमारी से बचो. अब इट वाज सो वाइड स्प्रेड डिजीज. उन्होंने क्या कि भाई हमारे पास इलाज नहीं, तो क्या करते थे, दे मेड अ रिमोट एरिया in mountainous area. They used to send their affected people to that place. अपने अम्मा अब्बा को, भाई बहन को, जो जो बीमार होता था उसको वहाँ उठा के डाल देते थे. वहीं पे जाकर उनको खाना दे देते थे, वहीं पे उनको रखते थे. जब वो मर जाते थे तो वही लोग उनको दफन कर देते थे वहाँ पे. उनको शहर में आने नहीं देते थे. क्यों? कि कहते भाई हम सब मर जाएंगे. In that condition, in that circumstances, when Bani Israel did not make a medicine against that disease, Allah gave this supernatural power to Islam कि जो अपना हाथ फेरते थे ना वो बंदा सही हो जाता था. वो तो उठा के इसको फेंक देते थे वहां पर अपना कि हमारे इलाज नहीं. मूसा अपना हाथ पे तो सही हो जाता था. आप इमेजिन करें कि why this miracle was shown, because Allah would like to make it clear to the people that this man is not ordinary man, this is my messenger. And not just this, यानी कि what they were trying to, it was given by Allah to Islam. He brought a dead alive. वो तो दवाई बना रहे थे, उन्होंने जिंदा निकले. इंसान मुर्दा को जिंदा करने लग गए. Are you getting a point? Hello, are you there? अच्छा, I think तुम कहीं गए हो, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. I will share with you. In that condition, Allah gave him this supernatural power that he used to bring that alive. So when Bani Israel, they thought Isa al-Islam will bring something new for us, and then that can challenge the authority to start disturbing Isa al-Islam. अच्छा, तुम कहीं चले गए थे बाहर, उसको देख लेना. नहीं, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था एक सेकंड. अच्छा. तो when Isa al-Islam, he proven his power, he has proven his prophethood to the Bani Israel, and he bring them towards Tawheed. So those Jewish people, the people of Bani Israel, they took it negatively and they thought that Isa will make our people against us. देखो ये हमेशा होता है जब भी कोई नया नबी आता है ना. हमने पहले पढ़ा था, आपको याद होगा मक्की लाइफ के अंदर वर्क़ा बिन नौफल ने यही कहा था, whenever a messenger he preached his people about Tawheed, his own people became his enemy. Because that new teaching was against this prestige, the honor, their lifestyle, their luxuries. तो बनी साल की थॉट कि भाई ये तो अजीब बात कर रहा है, साले उससे पीछे चल जाएंगे तो उसको कत्ल कर दो. तो they were instead of Islam, when Islam he got, ये आखिर जो आया था ना, इसका आखिर बता रहा हूँ मैं. वो इसका फफ्ता बनी इस्राइल अनका इज़हैतहुम बिलबयिनात फ़क़ाल लज़ी कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन. तो when Islam he showed his all miracles, तो बजाय इसके कि they accept him as a messenger of Allah, उनका ये तो जादू कर रहा है. हालांकि जादू में, मैजिक में और मिरेकल में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है, जैसे मूसा अलैहि सलाम को आता है. एनीवे, फिर अल्लाह ने क्या कहा कि आई प्रोटेक्टेड यू. कैसे प्रोटेक्ट किया? इन दिस वर्स, व्हेन बनी इस्राइल दे मेक अ फाइनल डिसीजन दैट ईसा इज अ डेंजर फॉर आवर नेशन, ईसा इज अ डेंजर फॉर आवर रिलीजन एंड आवर कम्युनिटी, so we should eliminate Isa. They make intent to kill Isa, and this was learned by somehow by his followers. जब मूसा को पता चल गया जनाब ये लोग मुझे कत्ल करना, तो Isa he isolated himself from the community. उन्होंने मेन कम्युनिटी छोड़ दिया, वो आइसोलेशन में चले गए. And from that isolation, he was in contact with the community with a few of his prominent followers, and they were altogether 12. They are having different names, Saint Paul, Saint Joseph, Saint Michael, Saint Patrick. कुछ ऐसे उनके खास गॉस्पेल थे. He was in contact with his community with those few people. ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? Yes. मेन कम्युनिटी में नहीं है, कहीं छुप गए
और इनके थे फाउंडेशन। अच्छा ये समाओ ये आइडिया जो है शियो ने भी लिया हुआ है। एक हमारा टॉपिक होगा इमामत का, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि टॉपिक ये कैसे उन्होंने डब किया है तशम्मुद्दीन ने कि भाई आप सुना ना इमाम मेहंदी का जो कॉन्सेप्ट है, इमाम मेहंदी आएंगे क्या से पहले फलाना होगा ये होगा। हम्म। ये शियो ने जो लिया, ये अलग अलग इमाम मेहंदी, सुन्नियों के अलग हो तो शिया के अलग मेहंदी है। तो Yes. भारत, तो ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया है। तो ईसा वाज इन कांटेक्ट विद हिज नेशन एंड व्हेन Bani Israel they found कि Isa has hidden somewhere and they could not find Salat, and they got this idea कि भाई these few people they go somewhere and they are might be in contact with Islam, they try to bribe them। उन्होंने 12 के 12 बंदों को पकड़ा, उनको टॉर्चर किया, उनको ब्राइब दे के भी किसी तरह हमें बताओ कि इस्लाम है। इट इज नेरेटेड कि वन ऑफ द इस्लाम फॉलोअर ही फेल इन ट्रैप। उनका एक जो फॉलोअर्स था ना, वो बेचारा वो उनके ट्रैप में आ गया, उनके मार कुटाई में आ गया, ब्राइब के अंदर आ गया। समझो उन्होंने कहा आई विल टेक यू टू ईसा अलैहि सलाम। बाकी किसी ने साथ नहीं दिया, बेचारे सब शहीद हो गए या बहरहाल उन्होंने मना कर दिया। तो व्हेन दैट his followers, but he was very true for in the beginning, when he betrayed his Islam and we brought the nation of Bani Israel towards that day when Islam was hidden, Allah Yes. subhanahu wa ta'ala has informed Islam that this has happened to you। अल्लाह ने जिब्राइल सलाम के जरिए वही के दिन को बता दिया कि भाई आपके फलाना फलाना फॉर्म ने आपको बिट्रे कर दिया है और वो आपके दुश्मनों को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। तो when he brought them all to हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उसने कहा कि भाई वेट ओवर हियर, लेट मी चेक वेदर ईसा इज इनसाइड इट और नॉट। मुझे देखने दो कि ईसा अलैहिस्सलाम घर के अंदर ये जगह पर मौजूद है कि नहीं है। अगर मैं से साइन हो तो तुम लोग अंदर आना। Yes. तो when he went over there, Allah subhanahu he took Isa salam up to the heaven। What we believe as a Muslim, we believe as a Muslim that Isa salam is still alive and he's up to the first heaven, from here first heaven, and he will come before Qiyamah and he'll fight against Dajjal and he'll kill Dajjal and he'll bring Islam to all of the world। Even those Christian people who believe in Christianity, when they will see Isa salam, they will accept Islam, and Isa salam will follow Ummat Muhammadiyah, Shaykh Muhammadi। He had his own book, but he will not follow Bible, he will follow Quran Majid। This is our belief, am I right? ये बात है ना। Yes. Yes, sir. अब हुआ ये कि somehow जब अल्लाह ने उनको उठा लिया, यहाँ पे डिफरेंट नेरेशंस हैं, क्योंकि इसराइलियत के अंदर भी आता है, हदीस के अंदर आता है, लेकिन डिटेल के अंदर नहीं। अब इसराइलियत क्या होती है तुम्हें बता दो, तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। इसराइलियत इज अ काइंड ऑफ नेरेशन। इसराइलियत वो नेरेशंस होती हैं, ये निकला है वर्ड बनी इसराइल से, इसराइलियात। अब ये क्या चीज होती है, ये मोस्टली सेड बाय द सहाबा कराम। दो सहाबा कराम, तुम बोर तो नहीं हो रहे? No, no. दो सहाबा कराम who are before Islam Christians, who are before Islam Jewish people and they were scholarly people। जो सहाबा कराम इस्लाम से पहले बहुत बड़े पोप थे, प्रीस्ट थे, they were expert in Bible, they were expert in ज़बूर and इंजील and Bible। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और जब कुरान कहते आती थी तो वो कहते या रसूल अल्लाह, हमने जब हम काफिर थे तो हमें ये बताया जाता था कि ऐसा है। दूसरे में कहते हाँ ऐसे ही हुआ था, दूसरे कहते हाँ ऐसे ही हुआ था, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो हुजूर गाइड करते थे। Yes. तो बहुत सारी ऐसी नेरेशंस जो हैं वो इन सहाबा कराम से नरेटेड है, जो कि इस्लाम के खिलाफ नहीं, लेकिन वो उनके अपने बिहाफ पर है। उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर जो उन्होंने सीखा था, ट्रू इल्म बाइबल का, ट्रू इल्म जो उन्होंने उस बेस पर उनका, तो इसराइलियत की बात उसको कहते हैं इसराइलियात, वो राइट इसराइलियत कहलाते हैं। तो डिफरेंट नेशन है कि जैसे कैसे हुआ। तो सम बिलीव कि द पर्सन हु बिट्रेड इस्लाम, he was transformed in Islam phase। कुरान के अंदर बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या था। अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर वह शब्द लहू, अल्लाह ने कहा तो अल्लाह ने शुबह में डाल दिया, डाउट में डाल दिया। लेकिन बात के अंदर ये आता है कि द पर्सन हु बिट्रेड इस्लाम, अल्लाह टुक इस्लाम अप टू द हेवन Yes. एंड हिज फेस वाज टर्न टू इस्लाम फेस। अब एक इंग्लिश मूवी था ना फेस ऑफ, देखा तुमने, जॉन ट्रैवोल्टा की। No. आजकल लोग क्या करते हैं, पूरा स्क्रीन काट के ना मुंह पे लगा देता आपका, जैसे उसके है ना उसके मुंह में आता है टॉम क्रूज की मूवी के अंदर, तो आपका स्क्रीन में। तो जब वो लोग बहुत देर हो गई, वो आया बंदा बाहर ही नहीं आया। Yes. तो ये क्या चक्कर है, बंद तो खुद घर के अंदर घुस गए। या तो they went to the house और he himself came out and thought कि भाई मुझे तो मन है। when they found कि भाई इस्लाम को देखा तो इंसान इस्लाम है, हालांकि इस्लाम नहीं थे। somehow they by some crucified इस्लाम, जो उनकी रवायत के अंदर आता है, जो ने इस्लाम को क्रूसिफाइड कर दिया and they buried him into a grave, एक कब्र में दफन भी कर दिया।
अब क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है और रिफॉर्मर्स हैं, तो उनके अलग 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 बिलीव हैं। बात बिलीव है कि जो उनके फॉलोअर्स थे, ससान के फॉलोअर, जब नेक्स्ट डे व्हेन दे वेंट टू, तो उनकी हुकूमत के खिलाफ लड़ नहीं सकते थे, डर गए। लेकिन जब अगले दिन वो सलाम की कब्र में गए तो सलाम की कब्र बहुत ओपन, उनकी कब्र खुली हुई थी और उनकी डेड बॉडी गायब थी वहां से। तो बहरहाल तो उनकी वजह से हमारा इवेंट सही है कि हमारा बिलीव ये कि सलाम वाज टेकन बाय अल्लाह ताला टू हेवन एंड ही वाज ओवर देयर टिल before sign of Kaaba. In this passage, Allah would like to let us know about his relationship with his Islam, his favor upon him and his mother, how he gave him the power of healing people, was having affected by incurable disease. He used to bring dead alive. He used to make a blind person by birth to power of sighting. ठीक है ना? And these all Yes. are with Allah's will. No prophet, no messenger, no Alila can do anything without Allah's order. और ये प्रॉफेशन के साथ भी हुआ कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो वह, जिसमें आपको पहले बताया था कि मैसेंजर जिब्राइल अलैहिस्सलाम यूज्ड टू कम विद द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, अब यू कैन सी द थीम ऑफ दिस पैसेज फ्रॉम अल्लाह, ये सारा का सारा वही पैटर्न चल रहा है। इट डिस्क्राइब गॉड एड्रेस टू ईसा अलैहिस्सलाम जिस इन द डिवाइन कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कम्युनिटी चिल्ड्रन ऑफ अलैहिस्सलाम। अब अगर ये हम पहला वाला मान लें कि क़यामत की बात हो रही है, तो ये क़यामत की बात भी हो सकती है, ऐसा ले सकते हैं। क़यामत के अंदर ये भी आया ना कि व्हेन अल्लाह विल कॉल नेशंस and Allah will call Yes. their messenger. So when will call अल्लाह कहेंगे कि did I send you a messenger, आपको मैंने भेजा। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कुरान में कहा कि there is no nation whom I did not send a warner. कुरान में अल्लाह ने कहा है कि there is no nation I did not send a messenger. हमने हर कौम में एक नबी भेजा है। तो सब वो वन बाय वन डिनाई करते रहेंगे। ईसा साहब की कौम को बुलाया जाएगा and they will ask why did you worship Isa as my son? So they will say कि Allah, Isa told us to believe in him as Allah's son. तो ईसा साहब को बुलाया जाएगा। ईसा साहब बोले ईसा, did you tell them to believe in you as my son? तो ईसा साहब कहते हैं अल्लाह, I did not tell, ये तो उन्होंने खुद किया। तो बाकायदा कन्वर्सेशन होगी। तो या तो वो कम्युनिटी की बात हुई, उस वक्त की बात हुई, अल्लाह उसकी कोर्ट में कहेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस चलता रहेगा कि हम डे ऑफ जजमेंट के अंदर कैसे काउंटर करेंगे, कैसे नबी को फेवर करेंगे। Hazrat Isa spoke from his cradle, could give life to the dead and cure the blind, lepers. God gave him further power in the form of the book and understand divinity. These all to let people know about Tawheed. The Quran refers this favor to him by this word we gave Jesus the son of Mary, the clear sign and stand in him Holy Spirit. Holy Spirit यहाँ पर कहा जा रहा है जिब्राइल साहब को। जिब्राइल साहब is the only angel which is addressed by different name. जिब्राइल साहब को जिब्राइल भी कहा है, Holy Spirit भी कहा है, रूहुल अमीन भी कहा है, रूहुल कुद्स भी कहा है। ठीक है, ये वन ऑफ द जॉब ऑफ एंजल्स, आपने 9 में पढ़ा होगा, टू सपोर्ट मैनकाइंड। एंजल अल्लाह ताला इसलिए भी पैदा करते हैं ताकि वो इंसानों को मदद करें, मुसलमानों की मदद करें, जैसे बदर में क्या और में क्या पुराना सुना। The purpose of these special favors is to demonstrate God's power and support over all humans. Whenever Allah gave a miracle to his messenger, the only reason is to make him clear in front of that people that this man is not an ordinary man. इसकी बात मानो, ये मौजा का मतलब ही होता है। तो बहुत सारे जिनके अंदर अल्लाह ताला सब लिखते हैं उनको हिदायत मिल जाती है, बहुत सारे को खराब कर जाता है। Finally, God protected him miraculously by lifting him alive to the heaven when his community was about to crucify him. अब जैसे अब क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या फलसफा है? क्रिश्चियनिटी का फलसफा ये है कि बिलीव इन ट्रिनिटी, यानी कि अजीब सी बात है, मतलब मौका भी है, लेकिन बहरहाल माफ करना भाई अगर कोई बुरी बात नहीं। लतीफ यूं ना लतीफ़ा, लतीफ़ा के माने जोक होता है ना, लेकिन लतीफ़ा के माने ऐसी जोक नहीं है। लतीफ़ा का वर्ड निकला लतीफ़ से, एंड लतीफ़ इज वन ऑफ द अल्लाह's नेम। लतीफ़ मींस सो प्योर, सो सोफिस्टिकेटेड। हम इसको जोक के माने लेते हैं, गलत नहीं। एक लतीफ़ बात बताता हूँ, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन तुम शिया तो नहीं हो ना भाई, सुन्नी हो? कौन हो? सुन्नी। हाँ, एक वैसी बात बताता हूँ, वैसी बात आती है। जैसे अभी बहुत से लोग, जैसे तशरीफ़ के अंदर ये लोग मातम करते हैं, इनके इसमें आज़ादारी मज़हब के अंदर, ये वो बड़ा अफसोस करते हैं कि हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया था। हालांकि फिर ये अपनी खुद बुक लिख ली कि जनाब कूफी ने बुलाया था, ये भी हमारा टॉपिक है करबला का, और कूफी ने उनको बिट्रे कर दिया। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है कि समहाउ वो ये कहते हैं कि वी कुड नॉट सेव ईसा अलैहिस्सलाम व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड। क्रिश्चियनिटी वर्जन बता रहा हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम
he himself took this pain to uh, wash off every sin of mankind. They believe in Trinity. God came from heaven on earth in a shape of man and crucified himself on behalf of the whole mankind. So if you want to get eternal salvation, life after death, you have to believe in Isa as Allah's son. वो ये कहते हैं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम पर एज अल्लाह के बेटे के तौर पर ईमान ले आओ तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने आप को क्रूसिफाइड कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ सिंस कमिटेड बाय मैनकाइंड ऑन अर्थ। बात समझ आ गई? Yes. अपने आप को बलि चढ़ा दी कि भाई तुम्हारे गुनाह का कफारा मेरा, मैं खुद दूंगा। हालांकि हमारे इस्लाम के अंदर क्या है, जो गुनाह करता है वो खुद भुगतेगा। कुरान ये कहता है ना कि ना बाप Yes. बेटे का बोझ उठाएगा, ना बेटा बाप को उठाएगा, ना बेटी माँ, हर अपना अमाल का खुद जिम्मेदार है। इन क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कि जब खुदा ने खुद अपना क्रूसिफाइड कर दिया, बस आप उस पर बिलीव कर लो कि अल्लाह का बेटा है। They are required to believe that like other messengers, Jesus was also man, chosen by God. He was granted miraculous power. जैसे अल्लाह ने हर नबी को दिया। तो if this passage is also important for Muslim to let us know about the status of messengers, particularly Isa Islam. Yes. It declines the Christian belief that Isa is Allah's son. It totally eliminates the concept of Isa as Allah. बात तो कहते हैं कि ईसा अल्लाह है, जैसे बाद लोग कहते हैं कि ईसा वाज Allah's son, and बात कहते हैं ईसा अल्लाह ही एक्चुअली है, and he came from heaven on earth. Yes. And those who believe Trinity, they believe कि ईसा, Holy Spirit and Allah, they same thing, एक ही चीज है। Muslim also learned that God messengers enjoy special privilege and were always protected by him, so that ordinary human could identify the prophet. यानी कि this also with Allah's will, that Allah protect his messengers, and whatever happens, this is due to Allah's will. अल्लाह अपने मैसेंजर को प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उसका उनका मर्डर नहीं होता। जैसे आपको पता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ बनी इस्राइल प्रॉफिट दे वर किल्ड बाय द पीपल ऑफ बनी इस्राइल। तो अल्लाह ने उनको तो उनकी किफायत नहीं कर पाए। Yes. मुझे याद पड़ता है, मैंने कहीं पढ़ा था, इवन ज़करिया सलाम ही वाज मर्डर्ड बाय बनी इस्राइल। ज़करिया सलाम को भी मर्डर किया था बनी इस्राइल ने, क्योंकि हज़रत मूसा केयर टेकर। तो ये यहाँ प्रोटेक्शन से मुराद क्या है, पर्टिकुलरली अबाउट शिर्क और इवल थिंग्स, यानी कि उनको अल्लाह ने इवल थिंग्स से, इवल एक्ट से को प्रोटेक्ट। जैसे हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, हम शुरू में पढ़ लेते हैं मक्की आयत में कि व्हेन एवर प्रॉफिट ही विश टू गो टू ओकास फेस्टिवल, एक बच्चे तो चाहते हैं मैं ओकास में जाके देखूँ वहाँ पे क्या होता था, नाच गाना जुआ शराब ये, तो अल्लाह ताला उसको सुला देते। अबू तालिब आते थे, चलो भाई चलो, है देखो तो हदीस में तो सोने दो भाई, सो रहा है, तो वहाँ पे गए नहीं, तो अल्लाह इस तरह भी प्रोटेक्ट करते थे, नींद आ जाती थी। जैसे असहाब कहाफ को अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया, सदियाँ 3 सदियाँ 4 सदियाँ सोते रहे वो लोग और क़यामत तक सोते रहेंगे, तो अल्लाह ने इस तरह डिफरेंट प्रोटेक्शन करते रहते हैं। However, they were all rejected despite such clear sign by spirituality that, यानी कि whenever we also know the importance कि whenever the messenger they say the truth, they were rejected, and it will comes to us too. ये हमारे साथ भी होगा। हमारे अपने लोग जब हम अमल करेंगे ना, तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि हमारे अपने लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएं। जैसे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब हमारी सोसाइटी के अंदर जब कोई आदमी दीनदार बन जाता है ना, तो यूजुअली उसके अपने फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं इन द बिगिनिंग। जैसे एक जवान बच्चा है, उसने दाढ़ी रखना शुरू कर दी, तो उसके अम्मा कहते हैं तुम दाढ़ी रख रहे हो, अभी तुम बच्चे हो, शेव करो, बाद में दाढ़ी रख। दाढ़ी बात मैंने इस तरह यूजुअल होता है। बहुत जैसे कोई अगर बच्ची ये पर्दा करने लगती है, तो भी बहुत सारे खानदान होते हैं, तो भाई पर्दा करने लगे, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, स्कूल अभी नहीं करना, ये बुलाना है, ऐसे में आम चलन है माशाअल्लाह। तो आर ओन पीपल, सो वी हैव बीन थ्रू दिस पैसेजेस टू मेक इट श्योर कि भाई ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये नबी के साथ भी हुआ। अगर आज मैं टोपी पहनने लग जाऊंगा, शलवार तक ऊपर कर दूंगा, तो लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, तो उड़ाएंगे, क्योंकि हर नबी के साथ ऐसा हुआ। तो इट गिव अस सम सॉर्ट ऑफ करेज, इट मेक अस टू बिकम patient and tolerant. क्या ख्याल है? Important. Muslim also learned that all humans, including the rejectors of truth, will stand accountable. This passage also let us know about the importance of accountability. There is no one who is exempted. चाहे वो इंसान, देखा ना अल्लाह ने, देखो आपको बताऊं, जब एक अगर उस सीन का है अकाउंटेबिलिटी बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पता है, अल्लाह ताला हर इंसान को बुलाएंगे, हर नेशन बुलाएंगे। Allah will call a nation and say, why you do not worship me?
why do not believe in me and tawhid and why do this then? तो अल्लाह वो कहेंगे अल्लाह you did not send us any warner. आपने तो हमें कोई नबी हमारे पास भेजा ही नहीं. हालांकि Yes. अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? अल्लाह कुरान में कह रहा है कि there is no nation whom I did not send a warner. कोई ऐसी कौम जिसमें मैंने नबी नहीं भेजा हो. वो अल्लाह को Mhm. झुटला देंगे. भाई अल्लाह माफ करे, ऐसे खतरनाक लोग हैं बताओ. हम तो लोग झुटलाते हैं, अल्लाह तो लोग अल्लाह के सामने झुटला देंगे. अल्लाह आपने हमको नबी भेजेंगे, Yes. हालांकि अल्लाह ने भेजा होगा. लेकिन करते 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 बाद नशिंदर ये आता है कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह व्हेन दे फाइनली अल्लाह कहते हैं ओके इफ यू थिंक दैट आई डिड नॉट सेंड एनी नबी टू यू, डिडंट आई Mm. गिव यू विजडम, डिडंट आई गिव यू द माइंड, द पावर, didn't use that power, you use your mind and you create all of those things. अल्लाह हमको रिमाइंड करेंगे ठीक है अगर तुम ये कहते हो कि नबी नहीं भेजा तो तुम्हें अकल नहीं दी. Yes. दिस अकल दिस विजडम इज अ वेरी ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. अल्लाह की ना बहुत बड़ी, इसी अकल की बुनियाद पर इंसान बहुत आगे तक जाता है ना. अब वो लाजा हो जाएंगे. देखिए ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला has given us this mind that when they work on iron and it starts flying. इंसान ने लोहे पे मेहनत की, लोहे को उड़ा दिया. कैसे? they start making jet pilots. Mm. Men work on mud and clay, it make high-rise building. अल्लाह ने इंसान को पावर दी, उसने मट्टी पे मेहनत की, मट्टी के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, लाइक पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. तो अल्लाह विल लेट देम नो कि भाई आई गिव यू माइंड. अब देखो ना आप ये देखें आप कि जो एथीस्ट लोग हैं Yes. who don't believe in any god, who don't believe any religion, but they don't deny death. They say कि this universe has been created by a Big Bang theory. एक बिग बैंग थ्योरी थी, आपको पता होगा, और ये यूनिवर्स क्रिएट हो गई. बट दे बिलीव कि दिस ऑल आर वर्किंग इन देयर ओन रोटेशन ड्यू टू सम पावर. ये जो सन मून जो आ रहा है सीजन लगाते हैं, एक रोटेशनल पावर है जो अपने ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है एंड इट्स गोइंग ऑन विद सम पावर एंड दैट दिस कैन बी अ ग्रेविटेशनल पावर. ठीक है ना. तो हम कहते हैं जरा वो पावर ही तो अल्लाह है. हमारा कहने का मतलब जो पावर बिलीव करते हैं वो पावर एक्चुअली अल्लाह ही की केयर करती है, वो पावर अल्लाह ताला की. तो द पॉइंट इज दैट दे डिड नॉट believe that. So they use their mind and they make lots of creations, lots of inventions. So Allah will remind them, I gave you the mind. You use your mind to make your life easier. You use your mind to make things better, but you do not use your mind to think about me, to think about my universe. And due to this akal, they will be thrown into hellfire. So this passage also let us know the importance of the wisdom and ilm which is given to all the prophet message of Allah SWT. ठीक है समील्ला. Yes, sir. तो ये आज हमारा की ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. इसके आपको इससे पढ़ा रहा है कि जो क्वेश्चन आता है अबाउट स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट हु वर सेट बिफोर प्रॉफिट सम लुकिंग दिस ऑल टू लेट द एग्जामिनर नो हाउ वी आर दैट. ठीक है. तो आज मैं हम यहीं पे एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग पैसेज पढ़ेंगे. एंड फॉर एनी क्वेश्चन या कंफ्यूजन? No, sir. Clear. इसको थोड़ा सा ये जो मैं आपको स्टोरी से थोड़ा याद करने की कोशिश करना. ये कि रिटर्न फॉर्म आपको तो मिलेगी नहीं, लेकिन ये कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको शेयर करूंगा तो आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं. करेक्ट. Yes, sir. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.